Okay, so let's start. And generally, that information is an HTML or any front end visibility presentation code, which then your browser shows. HTML, okay, so for this course that the bootcamp we're doing is, okay, just give me a second, guys. Let me admit people into the meeting. Okay, sorry for that. So, yes, generally for this course, uh, HTML and CSS are prerequisites since it's very basic. You do not need to have very advanced knowledge for this. But even if you have just basic knowledge of what HTML is and you can make very basic web pages with it, that's perfectly fine. You can completely take and go ahead with this course, okay? Okay. So coming to the architecture of, we always listen to things like, even I started this topic, this boot camp by saying that we have 4 sessions for front end and 4 sessions for back end. What does that actually mean? So we need to understand how every web application is made. To a web application, there are two major parts and three primary parts. So the two major parts are a client and a server. So you also known as front end and back end. The client is the front end and the server is the back end. So the client basically handles the presentation. It's the presentation layer. So whatever the website is rendering and the UI and the interface, that is basically known as the client. It is a program that is used by the person to run the application. Okay, and just like this, the server basically handles all of the business logic of the code. The client is not supposed to have any business logic within itself, any processing. The client is just a presentation of what is going on in the backend. So client end and server end. Now the client consists of only one thing, which is the front end, obviously. The back end consists of two main things. One is your server, and the second one is your database. Let's actually move on to that. Okay. So web engineering scenario. So engineering basically means how things are built up one by one and how we look at things differently compared to every other normal user that sees anything. Okay. So if any user were to see this page, he would think, okay, I would write my email, I would write my password, and it would log me in. Okay. He wouldn't care about what is going in the back end, what is going in the front end, what is the front end, what is the back end, what is the database. He needs to have zero knowledge of this. However, on the contrary, if you were a developer, you would need to look at this and you would need to think, okay, so how is this actually working? So this is the presentation layer, okay, this is the HTML, CSS, whatever front end they used, whatever styling they used, they presented as this is an input field, this is another input field. If I were to write my username over here and I were to write my password over here, and when I were to click login, what would actually happen at the back end? We need to think of code like that. So this is how basically any web application is made in very simple terms. There are three layers to it. There is the data layer, there's the application layer, and then there's the presentation layer. Okay. The application layer and the data layer comes in the back end. This is the back end. Whereas the presentation layer is the front end or the client side. And the application and data server are the server side. So the data layer consists of like it is the first layer. It is the closest layer to the hardware. It is where you obviously all your data is stored, since you can tell from the name. So if I were to go back one page and now I were to think about this, I would think about the data layer. I would be like, okay, so obviously there are millions of users signed up on Facebook, and obviously to check every time they log in, to check if that user already exists, they have to have the data stored somewhere. So where did they store it? How did they store it? Was the email stored as a string? Was it stored as... There are like millions of questions that pop up in our head, okay? Hello, Saad bhai. Sorry to interrupt. Yeah, There are yeah. people waiting in the waiting room. Please let them in. Okay. Fine. They should be in, okay? Okay, so yeah. I was talking about what we should be thinking, right?
So obviously, yeah, there's a database where all the information is stored. What is happening once I click the login button? How is the data being fetched? How is it being checked? That's the first part of it. The second part of it is once the data is actually fetched and stored, what is happening to that data? There is obviously a business logic behind this. We are checking, we get it if the user inputs an email and he inputs a password. The first thing we do is that we go to our database and we check if that email exists. If that email exists, we check the password for that email. Okay? And if that password matches as well, then we simply bring all the data of that user and show it to the user. So doing all of this is business logic. This is implementation. All of this comes in our application layer. This is the architecture, this is the protocols basically that we have. And lastly, when we would click login, obviously our home page would pop up and it would show us a lot of information. There would be a lot of, on the side there would be messages, on the front there would be my feed, there would be posts. That is the presentation layer. So okay, where do my messages go? They go to the bottom right, they go to the bottom left. Where does my feed go? Where do my notifications go? Where do my friend requests go? All of that is the presentation layer. So every time you guys look at a web application, I want you to think of it distributing them in these three things, because every web application, trust me, साथ every, भाई if there not is all. someone in the waiting room again. यार ये पता है मसला होता रहेगा, and I आप यहाँ don't से जो think सेटिंग्स चेंज कर दें कि anyone can join it ना. there is not an option for this. That's the thing. सेटिंग्स पे Settings, जाके general. जनरल Look, रिमूव. there's no option for it. I looked for it. अच्छा चलो अब we'll try to solve it later. हाँ अभी आप सही है. कंटिन्यू. Okay. So yes, every time you look at a web application, all web applications, no, not maybe not all, very simple ones don't have these three layers. Maybe the logic is done on the front end as well. That's completely possible. But the actual model that is followed is this, where you have a front end, you have a back end, and you have a database. So any program, any application that you see Kareem, okay? Kareem has data. Kareem has the name of its drivers, your login information, your location, everything stored on a database. When you actually call a driver, a booking is made. That's the business logic. That's going on in the back end. Driver is booked at the back end, and the actual UI that is showing you on the mobile is the presentation layer. So again, presentation layer, application layer, and data layer. These are the three layers, okay? We'll upload this presentation as well, and you guys can have a look at it afterwards. I won't go through everything in detail because I don't want to be just reading the presentations. Okay, so then we come to the technology stack. Okay, just okay, let's just check again if everyone's in. Okay, everyone is in. So let's come back to our presentation. Oh god. Acha. So I hope I'm not going too fast, but I don't think today's call will be very lengthy as well, because I don't want to start with the development work straight away and scare everyone off. I want to start slowly. I want to explain everything one by one, the logic, everything. And once you guys understand it, then I will slowly start implementing it and then telling everyone. So you guys can, after this call ends, after this session ends, there will be a form in which you can actually give feedback. If you think I'm going too slow, if there's something you would like me to cover, or if you think I'm going too fast, anything, okay? All ideas are appreciated, and we guarantee you that we'll take a look at your suggestions, and if possible, we'll definitely handle them. Okay, so Joy tech. भाई again someone is in the साथ भाई अच्छा, there is in the श्योर waiting श्योर room. श्योर मैं कर देता हूँ. अच्छा, तो टेक्नोलॉजी स्टैक. अब ऑब्वियसली हम वेब बेस्ड डेवलपमेंट बूट कैम्प करवा रहे हैं, तो देर विल बी अ स्टैक दैट विल हैव टू चूज फॉर डेटाबेस, फॉर front end and for back end. So we went with, for database we went with Node.js. Sorry, database we went with MongoDB, and for the back end we went with Node.js, and for the front end we went
with React.js. So this stack is basically called MERN stack, where the M stands for MongoDB, E stands for Express, R stands for React, and N stands for Node.js. MERN stack is actually very, very, very popular in the market right now. There are other stacks, LAMP stack, Mean stack, but I think currently being in the industry in Pakistan, in Karachi, and also working internationally, I think MERN stack is one which you definitely should have information about, and it's a great stack to begin on. It's very easy to learn. There's nothing too complex about it. It's a great stack to start on. Simply the reason for us to choose this stack was so that it can be a perfect kick start for you guys, and you guys can start off easy. So just like I told you, there are two sides to a web development. There's the client side and then there's the server side. Some of the okay, let's move forward. Okay, so I'll also mention everything that is used for front end, everything that is used for back end, everything that's used for databases. Okay, so front end is everything a user sees on the screen. Again, it's the presentation. HTML and CSS are the most basic form of front end languages that you can use, and basically every other framework or language has built up on HTML and CSS and JavaScript. Most of them built on JavaScript. So HTML, CSS, JavaScript, and then there are frameworks of JavaScript that we can work on. So AngularJS, Vue.js, React.js. We're working with React.js, and then these specific frameworks have standardized libraries that you can use, standardized uh, standardized library that you can use, components that you can use for making responsive web pages without worrying too much about the design. Some of them are Bootstrap, Material UI. So at the end of this bootcamp, I plan on telling you guys about Material UI as well and actually using their components. Material UI is basically a library made by Google, and we'll come to know more about it after we start. So, and for server-side programming, there are many languages, many. There's Java, there's Ruby, Ruby on Rails, Python में Django आ जाता है, Flask आ जाता है, PHP में Laravel आ जाती है, JavaScript में Node.js है, C# में है .NET Core, .NET MVC. There are many backend languages, okay, and I can go on, and the list would like go on. But obviously, जो very common for microservices is Java and JavaScript. So another reason, obviously, हमने Node.js choose किया. We could have picked Laravel, we could have picked Ruby on Rails, but it's not common in the market nowadays. C# पहले बहुत चलती Saad थी. bhai, there are people in the waiting room. सही. बहुत चलती थी C# पहले. .NET 2000s में .NET का ज़माना था. .NET ही चलती थी. पर अब जावास्क्रिप्ट का ज़माना आ गया और अब 80% मार्केट में, नॉट 80%, पर मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर इज टेकन बाय जावास्क्रिप्ट एंड Node.js. उसके अलावा PHP भी चलती है और जावा भी अच्छी खासी चलती है. डेटाबेस में यू हैव योर रिलेशनल डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. अच्छा, डेटाबेस इज ऑल्सो नॉट अ प्री रेक्विजिट, बट बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है भाई. हम ऑब्वियसली हम जो प्रोग्राम्स बनवाएंगे उसमें हम फाइल्स में, TXT फाइल्स में तो डेटा सेव नहीं करवाएंगे, और डेटाबेस से कनेक्शन सिखाना भी है और ये भी बताना है. तो वी वोंट फोकस ऑन द क्वेरीज. मतलब अब ये नहीं मैं माई SQL लेके बैठ जाऊँ, इसे डेटाबेस का कोर्स बना दूँ, माई SQL की क्वेरी सिखा रहा हूँ, सेलेक्ट, स्टैटिक, फ्रॉम, टेबल, लिस्ट, दैट. लेकिन यस, आई वांट यू गाइस टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट डेटाबेसेस एज वेल. और सबसे सिंपल डेटाबेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है. उसमें कोई ज़्यादा चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती. इट्स वेरी इंटुइटिव. जो तुम आइडिया सोचोगे कि भाई यूज़र नेम ऐसे डाला जाएगा, पासवर्ड ऐसे डाला जाएगा, वैसा ही होगा काम. इट्स वेरी इंटुइटिव. दैट्स द रीज़न वाई वी वेंट विद MongoDB. और बहुत चलता भी है MongoDB. इट्स वेरी फेमस. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉन रिलेशनल डेटाबेस, इफ नॉट द मोस्ट फेमस. अच्छा,
ये 3 चीज़ें हो गई। अब ऑब्वियसली जो बहुत हाई एंड लेवल पे बने हुए हैं एप्लीकेशन, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, शॉपिफाई हो गया एंड मैनी मोर, इनमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटा ये होता है, लेकिन इसमें और भी बहुत अक़साम होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। देयर इज़ नॉट ओनली योर डेटाबेस, देयर इज़ नॉट ओनली योर सर्वर। सो कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक बेसिक जो 99% बहुत हाई लेवल एप्लीकेशंस में होती हैं, तो मैंने सोचा प्रैक्टिस नहीं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, पर बता देना चाहिए कि ये होता क्या है, क्यों होता है। तो कैशेज, नाम सुना होगा सबने, कैश, कैशे, जो भी कहना है कह लो, होता है। अब इसका पर्पस ये होता है कि जब हम बार बार फ्रंट एंड से बैक एंड को बोल रहे होते हैं और बैक एंड डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहा होता है, तो दिस कैन बी वेरी ह्यूज, दिस लुक्स वेरी नॉन टैक्सिंग। पर जब बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो जो बिलियंस ऑफ लोग यूज कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे फेसबुक हो गया, अब at the same time 2 million 3 million people can be making an API call और वो डेटा मंगवा रहे होंगे डेटाबेस से। तो instead of every time for the server to go to the database, get the data and bring it back, there is a system that is called cache that is used. So imagine something like Google, okay? You were to search cat on Google, for example, तुमने cat search किया गूगल पे, तो गूगल जाएगा अपने डेटाबेस में कैट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ले आएगा तुम्हारे फ्रंट एंड पे, तुम्हें दिखा देगा इन्फॉर्मेशन। देन इफ यू वर टू सर्च डॉग्स, ओके, तो वो जाएगा डेटाबेस में, वो डॉग्स की फोटो ला देगा, डॉग्स की इंफॉर्मेशन ला देगा, तुम्हें दिखा देगा फ्रंट एंड पे। बट देन इफ यू वर टू सर्च कैट अगेन, वो उसके कैशे में स्टोर होगा, उसके कैशे में जो उसने पिछली दफा कैट से इंफॉर्मेशन लाई थी वो उसके कैशे में स्टोर होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द डेटाबेस, द कैशे नोज के अभी तक डेटाबेस में कुछ अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ वापस डेटाबेस में जाके कैट की इंफॉर्मेशन लाके देने के, मैं डायरेक्ट इसे कैट की इंफॉर्मेशन यहीं से दे देता हूँ, इसने अभी थोड़ी देर पहले कैट की इंफॉर्मेशन ली थी, तो वहीं से कैट की इंफॉर्मेशन देगा, दे देगा, और इन एन इंस्टेंट आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी विदाउट डेटाबेस देखे इस बार। तो बहुत काम की चीज़ होती है कैश, जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक होती हैं वो काफ़ी कट डाउन हो जाती हैं कैश की वजह से। बहुत सिंपलिस्टिक आइडिया है पर वेरी इफेक्टिव। और कुछ बहुत फेमस जो एग्जांपल्स हैं वो मेमकैच्ड है, रेडिस है, ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ऑल्सो अ सर्वर ऑब्वियसली। अब तुम्हारा बैकएंड जब चल रहा है तो देर इज अ मशीन दैट एक्चुअली नीड्स टू बी होस्टिंग योर बैकएंड, सो देर इज अ सर्विस दैट एक्चुअली नीड्स टू बी होस्टिंग योर बैकएंड। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, अपाशी यूज़ होता है, अपाशी टॉमकैट यूज़ होता है, एनजिंक्स बहुत फेमस, एनजिंक्स लोड बैलेंसर, एनजिंक्स का सर्वर है अपना, एनजिंक्स की बहुत सारी सर्विसेज हैं। मैं बहुत डीप इसमें नहीं जाना चाह रहा बिकॉज आई नो अगर Bhai, there are people in the waiting room. मैं बहुत डीप इसमें नहीं जाना चाह रहा बिकॉज इफ आई गो डीपर इनटू देम, ऑब्वियसली बिगिनर लेवल कोर्स के लिए बहुत एडवांस चीज़ है ये। पर यू गाइज नीड टू नो कि अच्छा ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं कोई पूछे तो नहीं, बस भाई वेब एप्लीकेशन तो फ्रंट एंड बैक एंड और ये हो गया, और तो कुछ होता ही नहीं। कैसे क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, तो देर शुड बी एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज। हाँ, तो वेब सर्वर, बैक एंड लैंग्वेज, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें, जैसे हमने अपाशी, एनजिंक्स बोला, बैक एंड लैंग्वेज में हमने बोला पाइथन हो गई, नोड जेएस हो गई, पीएचपी हो गई, जावा हो गई, डेटाबेस में इतने सारे डेटाबेस के एग्जांपल्स दिए, ये सारी चीज़ सर्वर साइड पे आती है, बैक एंड साइड पे। और फ्रंट एंड में सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड में आपकी वो वाली प्रेजेंटेशन लेयर आती है, रिएक्ट जेएस हो गई, एचटीएमएल सीएसएस हो गई, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी हो गई, एंगुलर जेएस हो गया, ये सब क्लाइंट साइड में आता है। और लास्टली, नॉट लास्टली पर सम स्टैक्स यूज्ड बाय फेसबुक, एयरबीएनबी, शॉपिफाई। तो देखो, वेरी फेमस एप्लीकेशंस, और यू सी रिएक्ट जेएस राइट देयर, ओके, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, तो रिएक्ट जेएस करा रहे हैं हम, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू गाइज। भले से नोड जेएस नहीं है पर ट्रस्ट मी, अभी मार्केट में बहुत चला हुआ है नोड जेएस, एंड होपफुली यू गाइज विल हैव अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, सो फार if anyone has any questions, you can open your mic and ask me one by one तरीके से।
Or Saad, maybe ask them to raise their hand and then you can just pick up person one at a time. Okay, sure, actually, I can do that. Yeah, I'll stop sharing my screen, okay? I'll admit everyone. Okay, Amanullah, you can unmute and ask me any question you have. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. सर मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिकली जब हम लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं, सो हम्म, जो यूज़र एक्सपीरियंस और जो यूज़र इंटरफेस होता है वो पार्ट कहाँ पर आता है? वो पार्ट क्लाइंट साइड पे है। तो उसका कोई लिंक नहीं होता फ्रंट एंड के साथ बेसिकली, जैसे बिल्कुल, आपने आई थी बिल्कुल होता है, HTML। बिल्कुल होता है। जब आप बात कर रहे हो यूजर एक्सपीरियंस की, एक दफा दोबारा बोलो। जी जी, मैं यूज़र एक्सपीरियंस की अच्छा, बात कर रहा यूजर एक्सपीरियंस की जो चीज है, ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, सही है, कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा था, ये कैसा था। हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम बहुत टेक्निकल चीजों की बात कर रहे हैं, कि एक्चुअली में जो स्क्रीन यूजर देख रहा है वो फ्रंट एंड है। जो यूजर का अपना एक्सपीरियंस है, कैसा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, स्लो है, फास्ट है, वो एक अलग चीज है। हम अभी बहुत टेक्निकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। हूँ। ओके, सो बेसिकली जो फिग्मा पे लोग डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो उसको राइट, फिर उसको HTML और CSS के थ्रू मैप किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। यू कैन यूज HTML CSS, यू कैन यूज एनी फ्रंट एंड, पर जो UI ये जो काम बता रहे हैं आप, वो UI UX डिजाइनर का होता है। इट्स नॉट टेक्निकली अ डेवलपर दैट वर्क्स ऑन द डिजाइन फिग्मा पे या प्रोटोटाइप्स बनाने में। वो एक डिजाइन बनता है पेंसिल पेपर पे या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे लाइक फिग्मा, और फिर वो डिजाइन डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर को दे दिया जाता है, और फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है उसको कोड में कॉपी करना, सही है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। चैट में भी एक सवाल आया है कि to what extent someone with no prior knowledge of HTML and CSS can survive through this course। अच्छा देखो, तो तीन तीन चीज में डिवाइडेड है, मैंने बोला था, बैक एंड, फ्रंट एंड, और बैक एंड में डेटाबेस की भी एक क्लास आएगी, एक सेशन आएगा जो पूरा डेटाबेस के लिए होगा। वो मैं mongoose के थ्रू क्वेरीज करवाऊंगा बैक एंड ही में डेटाबेस की। तो जहां तक बैक एंड की बात है, यू शुड कम्प्लीटली हैव नो, यू डोंट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ HTML CSS फॉर बैक एंड ऑब्वियसली। जहां तक फ्रंट एंड की बात है, देखो अब रिएक्ट जेएस में मैं तुमको रिएक्ट जेएस की फंक्शनैलिटी पढ़ाऊंगा, मैं तुमको रिएक्ट जेएस की राउटिंग। देखो, you need to understand what is HTML CSS used for। HTML and CSS is solely used for designing, presenting, showing on the screen। HTML और CSS में itself कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। उसमें जान डालने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज की जाती है, कि भाई कोई बटन है, उस बटन को क्लिक करूं तो कुछ हो, तो वो जावास्क्रिप्ट से हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, किसी बिजनेस लॉजिक से हो। HTML और CSS itself सिर्फ डिजाइन होता है। और मैं अब अगर React JS सिखाने बैठूंगा, तो मुझे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि HTML CSS इज वास्ट। ऑब्वियसली मैं एक सेशन में HTML CSS नहीं करा सकता, देयर आर मेनी थिंग्स। और मेरा जो फ्रंट एंड पे कोर कॉन्सेप्ट होगा, वो ये नहीं होगा कि मैं तुम लोग को बैठ के डिजाइन करना सिखाऊं, कि देखो शेडर यहाँ से डाल दिया, पैडिंग यहाँ से डाल दी, यहाँ से डाल दिया। ये सब मैं चाहता हूँ तुम लोग को पहले से एक आइडिया हो कि चलो ये हो जाएगी, सही है। व्हाट आई वांट टू टीच यू गाइस इज रिएक्ट में जैसे राउटिंग हो गई, रिएक्ट में फंक्शनैलिटी हो गई, रिएक्ट में हुक्स हो गए, रिएक्ट में जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी होती है जो उस डिजाइन में जान लाती है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच यू गाइस। अच्छा, very good question. How does cache knows that there has been some changes in DNS or not? If it does not, then why do we have to sometimes flush caches through Redis, etc.? अच्छा देखो अब्दुल्ला, दिस इज अ लिटिल एडवांस क्वेश्चन। मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में आंसर करूंगा कि कैशेज में एक ऑप्शन होता है पर्जिंग का। इफ यू वांट टू, यू कैन लुक इट अप। पर्ज होती हैं कॉपीज। जब कॉपी आती है ना कैशे के पास, डेटाबेस में जैसे ही कहीं से छेड़छाड़ होती है, तो वो सीधा डेटाबेस में क्वेरी चलती है और वो सारे कैशेस की कॉपीज को पर्ज कर देता है, जला देता है। तो देन इफ द कॉपीज आर पर्ज इन कैशे, तो फिर कैशे को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कैशे जाता है डेटाबेस पे, दोबारा हिट करता है, दोबारा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन?
ओके अच्छा, कोई सवाल नहीं है किसी का तो दैट्स रियली गुड। प्रेजेंटेशन मैंने काफ़ी लंबी बनाई थी पर आई गेस जल्दी ख़त्म हो गई। अच्छा, वुड ऑल ऑफ यू बी विलिंग टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी? मैंने ये प्लान किया है कि हम पहले बैक एंड से स्टार्ट करेंगे और फिर आखिरी 4 हफ्ते फ्रंट एंड पे जाएंगे, सही है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि you can go top down or you can go bottom up. It's up to you guys if you want to learn from scratch. पर मैंने ये डिसाइड किया है कि I will teach the approach where we start from the back end and then we go to the front end. तो आई फील लाइक दिस वे जान आती है, बंदे को पहले पता चलता है कि अच्छा भाई एपीआई कॉल्स क्या होती हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, क्या आती है, फिर बंदा उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करे फ्रंट एंड पे। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू, मैं अब एक छोटा सा नोट जेएस का एक प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। आई विल शेयर माई स्क्रीन। अच्छा, you guys can see my screen now. If you go on Google and you search Node.js, ये वेबसाइट आएगी, Node.js की साइट पे जाएंगे आप, and there are 2 versions for it, okay? There is a LTS version and there is a current version. I want you guys to install the LTS version. This is the latest stable release, and इसको इंस्टॉल करने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट चलाऊँगा, if I open my cmd command prompt and I were to write node in this, it would say welcome to Node.js v14.2.0। तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अच्छा, मीटिंग में कोई एंटर हुआ है, let me admit। तो I have Node.js installed। तो once you guys are done with this part, अच्छा ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल होगी। तो if anyone wants to follow this बाद The में, recording will be on the YouTube. We'll share the बिल्कुल YouTube link. और जो है वो by the end of the night हो जाएगी अपलोड इंशाल्लाह. बिल्कुल। So that अस्सलाम before the वालेकुम, next ये session रिएक्ट people सीरीज can. की होगी वीडियो? नहीं, ये वीडियो जो है ये आप देख लेगा बाद में। ये अभी बहुत बेसिक डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में थी आज का जो सेशन था, और इसमें मैं अभी एक सिंपल नोड का प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। रिएक्ट जेएस थोड़ा बाद में आएगा, बाद के सेशंस में। पर ये जो बूट कैम्प है, आप हमें बूट कैम्प करवा रही हैं, कितने टाइम तक चलेगी? ये बूट कैंप चलेगा 5 दिसंबर तक, सही है? हर सैटरडे संडे देर वुड बी सेशंस। सैटरडे को एक सेशन होगा, संडे को एक सेशन होगा। तो इन टोटल देर वुड बी में 8 रिकॉर्डिंग सेशंस। प्रोवाइड की जाएगी? बिल्कुल, आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड मिलेंगे, यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे। लेकिन we really यानी कि appreciate ये if you हमें guys. HTML CSS से स्टार्ट कराई जाएगी, जावास्क्रिप्ट हमें नहीं, एडवांस, इसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? आप हमें बेसिकली क्या क्या अच्छा कवर अप कराएंगे? अच्छा, अगर आप ये बाद में देखें तो मैं पूरा एक दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन के, क्या क्या कराएंगे क्या करेंगे। लेकिन जस्ट वंस अगेन मैं एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हम बैक एंड में Node.js पढ़ाएंगे, हम डेटाबेस के लिए MongoDB पढ़ाएंगे। फ्रंट एंड में मैं ये अज्यूम करता हूँ कि HTML CSS की बेसिक नॉलेज हो। मैं बैठ के HTML CSS से डिज़ाइनिंग नहीं करवाऊँगा। मैं रिएक्ट जेएस पे थोड़ा सा कोर्स शुरू करवाऊँगा, रिएक्ट जेएस की टेक्निकलिटी शुरू करवाऊँगा, और रिएक्ट जेएस के काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी करवाऊँगा। हुक्स हो गए, प्रॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। तो इस कोर्स का स्कोप ये है, सही है? ओके सर, ये तो फिर हमारे लिए बेनिफिश रहेगा। और ये कि हमें इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, या तो फिर ये बूट कैंप पे अगर हम इसके टास्क अटेम्प्ट करते हैं तो? अच्छा, बिल्कुल। अगर देर इज अ सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर यू गाइस, पर इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस, it's based on the assignments you submit. It is very appreciative if you guys attend the session live, because अगर live attend करने के लिए कोई session नहीं होगा तो फिर बात मज़ा नहीं आएगा, सही है? जो सच सच बात है। So I want everyone to enjoy। सबको मैं माइक खोल के सवाल पूछने का ऑप्शन दे रहा हूँ, जो है। तो मीटिंग में आओ, मीटिंग में देखो, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और देर वुड बी वीकली असाइनमेंट्स अपलोडेड, सही है? सैटरडे और संडे का सेशन पूरा होगा तो आपको एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा, वो असाइनमेंट आपको करके अपलोड करना होगा। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द असाइनमेंट्स इन ऑल ऑफ द 4 वीक्स, तो फिर आपको एंड में बूट कैम्प के एक सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, सही है? ओके, थैंक यू सो मच।
I will be watching this ओके live थैंक यू recording. श्योर। अच्छा तो अब हम कहाँ पर थे, नोड जेएस पे। अच्छा मेरे ख्याल से तो कुछ लोगों का नोड भी इंस्टॉल हो गया होगा, अगर लगा लिया होगा इंस्टॉल पे। तो अब सिंपली हम नोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो लेट्स क्लोज दिस, लेट्स गो टू द डेस्कटॉप। सही है, मुझे फोल्डर जहाँ पर बनाना है, मैंने न्यू फोल्डर खोला, मैंने नया फोल्डर बनाया, मैंने लिखा नोड प्रोजेक्ट, मैंने फोल्डर बना लिया इसका। मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, लेट मी जस्ट एडमिट समवन इज एंटर्ड द मीटिंग, एडमिट। अच्छा ओके, मैंने नोड प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लिया। मैं इधर ही कमांड लाइन खोलूंगा, cmd टाइप करके कमांड लाइन इसी प्रोजेक्ट में इसी फोल्डर में डायरेक्टरी में खुल जाएगा। अब मुझे कमांड लिखनी है npm init। ये कमांड सिर्फ तब चलेगी जब Node.js इंस्टॉल्ड होगा और उसका पाथ एडेड होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। सही है, अगर मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, बल्कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पर इन केस आप नोड लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं नोड इज़ नॉट अ कमांड, तो Sadhbhai, एनवायरनमेंट the वेरिएबल्स screen is खोल। not available. The screen not sharing. There's a white screen. अच्छा ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग and restart the sharing. Is it available now? Okay, I'm assuming दिख रही है स्क्रीन अब। तो अगर Node.js लिखने पे नहीं आ रहा कुछ, No, Saad, it's not visible. नहीं अब है विजिबल, सही है। Okay, 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 ठीक है। सही है। तो अगर नोड लिखने पे कमांड लाइन में नहीं आ रहा तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाओगे और इफ़ यू सी योर पाथ्स ओवर हियर, तो पाथ पे क्लिक करोगे और एडिट करोगे और देखो कि Node.js एडेड है या नहीं है। तो npm, ये देखो यहाँ पर npm एडेड है। तो अगर तुम लोगों ने Node.js इंस्टॉल कर लिया और ये ऐड नहीं है, तो सिर्फ एक दफ़ा डायरेक्टरी में ढूंढ के यहाँ पाथ में ऐड कर दो टर्मिनल में, इट विल द कमांड शुड वर्क प्रॉपर्ली। नाउ आई विल रन अच्छा इट। कौन सा काम करना होगा साथ? क्या Can you हुआ? please बता repeat this देना। process? Can you please repeat this process from the minute you typed it in the command ओके to? ओके श्योर। देखो, इफ आई राइट नोड ओवर हियर, ओके एंटर, मेरे पास आ जाता है वेलकम टू Node.js वर्जन 14.2.0 बिकॉज आई हैव Node.js इंस्टॉल्ड एंड बिकॉज आई हैव इट एडेड टू माई पाथ। ओके, आई विल एग्जिट दिस फॉर नाउ। सही है। अब ये हो सकता है, इट इज़ नॉट लाइक 99% तुम इंस्टॉल करोगे तो वो तुम्हारे पाथ में खुद ऐड हो जाएगा, but in case after you installed and you are typing node and maybe it will say something like this, node is not recognized as an internal or external command, तो फिर what you do is you open environment variables, edit the system environment variables, you go to environment variables, you see Node.js is added, see program files Node.js, and then you go to, if it's not, then you add it by yourself by new, clicking new and adding it. And then you go to the path, you click new, no sorry, you double click the path and you see if npm is added. npm also needs to be added. एक दफ़ा ये दो चीज़ें ऐड हो गई तो फिर ओके एंड इट शुड शो अप ऑन योर कमांड लाइन। ओके, साथ इनको डायरेक्टरी खुल के भी बता दो कि कहाँ से इनको पाथ कॉपी करना है। अच्छा मैं बता देता वो पाथ, लेकिन फॉर एवरीवन हु इंस्टॉल्स इट, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना नोड को, तो वो पूछता है किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है, तो वो डायरेक्टरी अलग हो सकती है हर दफ़ा। तो जब एक दफ़ा नहीं बेसिकली साथ ये होगा कि बिन का पाथ जो भी हो ना आपका बन रहा, बस वो डाल दो पाथ में तो वो खुद ही उठा लेगा। हाँ बस तो सही है। ये बता दूँ। सही है। तो खैर ये होगा नहीं, बेसिक इंस्टॉल पे आ जाता है कमांड लाइन में, ऐसा होता नहीं है कि कमांड लाइन में नहीं है। डेफिनेटली ऐसा नहीं। npm init, सर ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है, आप यानी कि इस सेशन के एंड होने के बाद फौरन ही आप अपलोड करेंगे? बिल्कुल, आज रात तक अपलोड हो जाएगी। ओके सर, आप फिर भी लिंक दे दीजिएगा हमें यूट्यूब पे। ओके श्योर। npm init लिख के एंटर दबाऊंगा एंड जस्ट वेट, लेट इट डू इट थिंग। अच्छा देखो, दिस utility will walk you through creating a package.json file. It only covers the most common item and tries to get sensible defaults. सही है।
तो पैकेज नेम मैंने अभी नोड प्रोजेक्ट ही दिया हुआ है, एंटर। वर्जन मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, 1.0। डिस्क्रिप्शन में भी एम्प्टी, एंट्री पॉइंट index.js एंटर, टेस्ट कमांड एंटर, गेट रिपोजिटरी एंटर, कीवर्ड्स एंटर, सब चीज़ों पे बस एंटर करना है, बेसिक बेसिक, सही है। और उसने एंड में ये फाइल बनाई, जो जो चीज़ पे एंटर किया था हमने, उसने बोला इज दिस ओके, यस, मैंने यस लिखा, मैंने एंटर दबा दिया। अब इफ आई गो ओवर हियर, I see I have a package.json file in this project, सही है। अच्छा, now you can use any code editor or even text editor that you want। हम लोग VS Code इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो in this again I'm gonna type cmd, और मैं इसी डायरेक्टरी में code space dot लिखूंगा, और VS Code will open in this specific directory, सही है। अगर हम देखें तो यहाँ नोड प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी खुली हुई है और हमारे पास एक package.json फाइल बन गई है। अब ये हमारे पास बेसिकली ऑल आवर नोड प्रोजेक्ट नीड इज अ package.json फाइल। हमारे package.json फाइल में उसका नाम होता है, उसका वर्जन होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, मेन, स्क्रिप्ट, ऑथर, लाइसेंस, और उसकी कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं। वो हम कल के सेशन में बताएंगे कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, npm का प्रॉपर इस्तेमाल क्या होता है, वगैरह वगैरह। For now, you guys have written main as index.js। हमने default enter मारा था, by default index.js होता है। तो we will create a simple new file called index.js and we will have a JavaScript file, सही है। If anyone has done any small work on JavaScript also, उनको पता होगा कि JavaScript में जो basic log command होती है या print command होती है, वो होती है console.log। If I were to type console, यार ये yes, पाथ सेट करने वाला फिर से समझा देंगे आप? किस चीज़ का बात? जो उसका था नोड डॉट अच्छा, जेएस के ओके लिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा देखें, वन थिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, एक बात समझ जाओ कि ये पाथ सेट करने वाली चीज़ मैंने बता तो दी, पर इसकी ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इट इज़ प्रोबेबल कि कुछ गलत किया है पहले से। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाओ Node.js की, सही है, मैं एडमिट कर देता हूँ सबको। सबसे पहले यू गाइज विल गो टू दिस वेबसाइट ऑफ Node.js, और ये LTS जो भी वर्जन हो सकता है तुम लोग जब इंस्टॉल करो तो वर्जन चेंज हो गया हो, 18.12.2 हो गया हो, 18.12.3 हो गया हो, जो भी हो, इस वर्जन को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड होने दो। जब ये पूरा डाउनलोड हो जाए तो इसका इंस्टॉलर चलाओ, और जब इंस्टॉलर चल के फुली कंप्लीट हो जाए इंस्टॉलेशन, फिर cmd खोल के नोड लिखो, तो आना चाहिए। देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट शो अप इन योर टर्मिनल। Sir, I have a question. राइट, गो अहेड। Sir, I have just basic experience with Java. So, is it practical enough that I should start learning JavaScript at this point? I'm already not getting enough of Java. अच्छा, ओके We will start किया पढ़ना first semester में. ओके। एज फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, देखो Yeah. फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ है कि वेब का बूट कैंप ले रहे हो, सही है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट आई वांट यू, देखो, फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन दिस बूट कैंप देयर विल बी अ सिंगल गेट अवे, ओके। एक टेक अवे होगा कि भाई नहीं मुझे ये फ़ायदा हुआ, नहीं मुझे ये फ़ायदा हुआ। जो मेरे ख्याल से लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन का आइडिया है, पर दे वांट अ टच ऑफ वेब एप्लीकेशन, उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। दे विल बी अंडरस्टैंडिंग स्टफ एट अ प्रेटी फास्ट रेट, और उनको आज की ये सेशन बहुत बोरिंग भी लग रही होगी कि यार ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ बताए जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं करवा रहे। तो डोंट वरी, बेफिक्र रहो, कोड भी मैं बहुत करवाऊंगा, बहुत असाइनमेंट्स मिलेंगे, चीज़ आ जाएगी, ओके। Okay. पहला Thank सेशन है आज। और जहाँ तक बात रही फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स की, फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स तुम लोग अभी आओगे, तुम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, ऊप पढ़ोगे, ठीक है, दोज आर फंडामेंटल कोर्सेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोज कोर्सेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, सही है, दे आर वेरी डिफरेंट। तुम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में जाओगे, you're gonna be writing algorithms, you're gonna be solving problems, data Yeah, structures exactly. वगैरह, बहुत डिफरेंट है। इट इज़ यूज्ड, पर इट इज़ यूज्ड फॉर अस लाइक एट अ वेरी एडवांस लेवल। हम बहुत बाद में जाके उसे यूज़ करते हैं, बहुत स्पेसिफिक लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कोर्स is how basically how a web application is run.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में तुम्हें ये पढ़ा दिया जाएगा कि बेटा फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, इफ कंडीशन ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। पर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के भाई इंडस्ट्री में नेटफ्लिक्स बना हुआ है, नेटफ्लिक्स का ऐप बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसकी क्या कनेक्शन है? वो तो जावा पे कोड करके जे फ्रेम्स पे फ्रंट एंड तो नहीं बनाया हुआ ना। उसकी क्या लॉजिक है, उसमें डेटाबेस कहाँ है, उसमें सर्वर कहाँ है, उसमें फ्रंट एंड कहाँ है? तो दैट इज व्हाट यू नीड टू गेट फ्रॉम दिस कोर्स। कि अच्छा भाई ठीक है, मैं अभी जावा सीख रहा हूँ, भले से मुझे नोट जेएस पे कोडिंग ना आए, जबकि अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट। तुम्हें कोडिंग नहीं भी आ जाएगी बिल्कुल फुल फ्लेज, तो यू विल बी एबल टू डू बेसिक स्टफ फ्रॉम दिस बूट कैंप। सही है, Yeah. बट यू शुड नो हाउ इट वर्क्स, यू शुड नो व्हाट द सिस्टम इज। कि डेटाबेस होता है, एपीआईज होती हैं, एपीआईज फेच करती हैं डेटाबेस से इंफॉर्मेशन और फ्रंट एंड को देती हैं, फिर फ्रंट एंड उस इंफॉर्मेशन को लेके डिजाइन करके पॉपुलेट करते हैं, फ्रंट एंड वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वेब ऐप बनाते हैं। तो दैट नॉलेज, इसीलिए मैंने ये पहला सेशन रखा था। इफ आई वांटेड टू, आई कुड हैव सेड के प्री रिक्विजिट HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ वेब एप्लीकेशंस होनी चाहिए। मैं आज पहले उससे नोड जेएस की एपीआईज बनाना शुरू करवा देता, डेटाबेस से कनेक्शन करवा देता। पर मुझे थोड़ा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को टारगेट करना है, एंड आई वांट दीज फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू एक्चुअली कम। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बहुत ही नीश उन्होंने बच्चों का रुझान रखा होता है कि बस इस डायरेक्शन में चलोगे तो ऊप पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे। एक्चुअली जो फील्ड में काम हो रहा है, दैट इज ऑल्सो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव नॉलेज अबाउट इट। कि भाई मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊंगा तो काम कैसे हो रहा होगा, मुझे क्या काम करना होगा। मैं वही जावा स्क्रिप्ट पे जावा पे फॉर लूप्स बना रहा हूँ और इफ कंडीशंस लिख रहा हूँ, और वही स्टार पैटर्न लूप से बना रहा हूँ या कुछ और भी कर रहा हूँ मैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क इन द इंडस्ट्री, how are applications made on the bigger scale. So that is the scope of this course. It is more than just your basic programming and coding. वो भी आएगी लेकिन आगे के सेशंस में जाके, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सही है, ठीक है। तो npm init करके हो जाएगा ये। अच्छा, do you guys want me to again show you adding the path? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में बाद में देख के तुम लोग ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, और वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगी। तो आई थिंक और टाइम नहीं ज़ाया करते, लेट्स मूव ऑन। बेसिक जावास्क्रिप्ट की कमांड जावा में जिन्होंने पढ़ी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होती है। C++ में जिसने पढ़ी हुई है सी आउट होती है। सी में जिसने पढ़ी हुई है प्रिंट एफ होती है। पाइथन में जिसने पढ़ा हुआ है प्रिंट होता है। जावास्क्रिप्ट में इट्स console डॉट लॉग। सही है, console डॉट लॉग हेलो डेवलपर्स। सही है, लेट्स जस्ट डू दिस एंड लेट्स सेव दिस फाइल। कंट्रोल एस दबा के मैंने फाइल को सेव कर लिया। नाउ एक जावास्क्रिप्ट का मैंने सिंपल फाइल बनाई है index.js, और मैंने उसमें एक प्रिंट करा दिया हेलो डेवलपर्स। अब हाउ विल आई रन दिस प्रोजेक्ट? तो मैं या तो VS कोड डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, न्यू टर्मिनल खोल के, एंड इफ आई वर टू ओपन दिस टर्मिनल, इसी उसमें डायरेक्टरी में ओपन होगा टर्मिनल, एंड आई कैन सिंपली राइट नोड स्पेस index.js, जो भी मेरे फाइल का नाम है ना जो मुझे रन करना है, आई एम सपोज टू राइट दैट एंड आई एम सपोज टू प्रेस एंटर। तो जैसे देख सकते हो हेलो डेवलपर्स प्रिंट हो गया। आई कैन ऑल्सो डू दिस डायरेक्टली फ्रॉम हेयर, जो मैंने खोला हुआ था इस डायरेक्टरी में। मैं यहाँ पर नोड index.js लिख के एंटर दबाऊंगा और मेरे पास हेलो डेवलपर्स आ गया। अब जहाँ तक बात रह गई, चलो मैं बेसिक एक और इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि इफ़ यू हैव स्टडीड पाइथन में डायरेक्ट वेरिएबल्स ऐसे अनाउंस हो जाते हैं x इज इक्वल्स टू 5 करके, पर सॉरी माय नमलॉक इज ऑफ, x इज इक्वल्स टू 5 करके। पर जावास्क्रिप्ट में दिस इज़ नॉट जनरली डन, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। जावा में इंटीजर स्ट्रिंग टाइप लिखनी पड़ती है पहले, सी में भी यही सीन है। जावास्क्रिप्ट में देयर आर टू मेन वेरिएबल्स, एक होता है var, जो var के थ्रू लिखा जाता है, var x इज इक्वल्स टू, और इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। You can write 10, you can write a string, you can write anything you want in this and it would work. You can even assign a function to var x, okay? If I wanted to, I could write a function test like this, and I have assigned a function to variable x. सही है, ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन में हम console.log कर देते हैं और हम console.log कुछ भी कर देते हैं इन फंक्शन, सही है।
अब ये फंक्शन वेरिएबल x में आ गया. If I were to use this function anywhere, I could simply call this function x. अच्छा, let's see if we don't call this function anywhere. हमने एक वेरिएबल बनाया x, उसमें हमने फंक्शन पास किया और हमने उसमें लॉग कराया. If I were to do node index.js for this, सिर्फ hello developers आ रहा है, because I am not calling this. ये लाइन कॉल नहीं हो रही. ये टेस्ट फंक्शन इस x में आ गया है, पर I am not calling this x anywhere. So if I were to simply call this x over here and save it again and run the project, see, I would get hello developers and I would get in function. So if that makes sense, जावास्क्रिप्ट में हमें टाइप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. हम वेयर एक्स में इंटीजर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, बूलियन भी डाल सकते हैं, इवन फंक्शंस तक भी डाल सकते हैं. मैंने फंक्शन डाल के भी दिखा दिया. तो नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टेंट्स. ओके, constants and variables are exactly the same. The difference is in the name. Constant अगर आपने जावा यूज किया तो जावा में कीवर्ड होता है फाइनल का. कांस्टेंट एक दफा मैंने सेट कर दिया, अगर मैंने const y is equals to 5 कर दिया, तो I cannot change this anywhere in my code now. It is fixed के y 5 रहेगा. If I were to try and rewrite this anywhere as y is equals to 6 and I were to run this, it would give me an error. Assignment to constant variable. तो this is a problem. Obviously, constant variable को reassign नहीं किया जा सकता. Whereas if this was a var, you could have perfectly reassigned it and it wouldn't be a problem. See, hello developers, code perfectly run हुआ, कहीं पे कोई problem नहीं आई. तो this is the basic difference between constants and variables. जावास्क्रिप्ट में ये दो चीज़ें यूज होती हैं. जहाँ तक फॉर लूप की बात रही, तो जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप यूज होता है, पर जनरली तुम्हारे लिए नोड जेएस में और रिएक्ट जेएस में बहुत रेयरली फॉर लूप्स इस्तेमाल किए जाते हैं. यू हैव अदर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट दैट आर वेरी यूजफुल. और जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे सिनेरियोज, मैं फंक्शंस बताता रहूँगा एंड यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये फंक्शन भी होता है, ये फंक्शन भी होता है. तो जावास्क्रिप्ट इज अ लिटिल डिफरेंट देन योर स्टैंडर्ड पाइथन या जावा जिसमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक कोड की जाती है. जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर स्केलेबल एप्लीकेशंस. बहुत अच्छी है. Saad, can you also talk about let variable? What अच्छा, is difference between let and var? अच्छा, लेट वेरिएबल एक्चुअली मैं आऊँगा, इस पे भी आऊँगा, मैं बता देता हूँ लेट के बारे में भी. पर मेनली जो हम यूज़ कर रहे होंगे ना, वो कांस्टेंट और वेरिएबल ही यूज़ कर रहे होंगे. अच्छा, एक और चीज़ इसके बारे में मुझे बात करना है. लेट और वार में ये होता है कि यार आई एम नॉट ट्राइंग टू गो इनटू स्कोप्स राइट नाउ. लेट इज ब्लॉक स्कोप्ड. लेट एक ब्लॉक में स्कोप्ड होता है, वेरिएबल उस पूरे फंक्शन में स्कोप्ड होता है. अगर एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो गया लेट से, तो वो वापस रीडिक्लेयर नहीं हो सकता. वार से वो रीडिक्लेयर हो सकता है. तो इन दिस केस नहीं नहीं, आई थिंक यू आर राइट, बट मैं ये कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था that क्योंकि those who will apply for interviews and everything, then these questions are going to be asked. These are very basic questions, but they do judge on pure JavaScript skills, right? So let and var का you are right about this कि ये block scope होते हैं. दोनों ही बेसिक, एक ग्लोबल स्कोप होता है, var आपका जो होता है अगर डिफाइन कर दोगे, so it is accessible everywhere. Let is accessible in basically आपके जो कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक में होता है, उसको भी आप रीअसाइन कर सकते हो, कॉन्स को नहीं कर सकते. लेट और वार को दोनों आप रीअसाइन कर सकते हो. सो इफ यू ट्राई विद एनी वेरिएबल माय लेट पॉइंट वाज कि लेट को आप उस ब्लॉक के बाहर रीअसाइन नहीं कर सकते. डेफिनेटली यस, दैट वाज हां, माय उसका पॉइंट. स्कोप खत्म हो जाएगा. ओके, राइट. या हाँ, तो कांस्टेंट में ये होता है कि यू कांट चेंज इट. लेट में ये होता है कि अगर मैंने लेट इस फंक्शन में डिफाइन किया है, लेट टेस्ट इज इक्वल्स टू टेस्ट की स्ट्रिंग, तो मैं इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर इस लेट को टेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता. इट वुड गिव मी एन एरर. पर इफ दिस वाज अ वेरिएबल इट वुड बी ग्लोबल. मैं इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ इस वेरिएबल को. ठीक है. अच्छा, अब आई गेस बेसिक जो आज का एजेंडा था हमारा, वो मुझे यही बताना था कि जनरल मॉडल क्या है, और मुझे एक बेसिक सा नोड npm का प्रोजेक्ट सेटअप करवाना था. अब कल के सेशंस में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर APIs. कल के सेशन का भी टॉपिक्स मैं डाल दूंगा, एजेंडा डाल दूंगा.
मीटिंग में. और कल tomorrow there's gonna be a different speaker. अनस होगा. I don't know if Anas is on the meeting with us. अगर अनस है तो अनस अपना एक इंट्रोडक्शन दे दे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम अनस हुसैन है. मैं कल आपके सेशन के लिए स्पीकर हूँगा. जस्ट लाइक साहब, मैं भी एक सीनियर स्टूडेंट हूँ IB में, BScs प्रोग्राम में. और फॉर द पास्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग एज ए Node.js डेवलपर. मेरा काम मोस्टली होता है APIs बनाना, डेटाबेस की स्कीमा बनाना, फिर कोड को डिप्लॉय करना. और मेरी जर्नी का आगाज इनटू वेब डेवलपमेंट हुआ था 2 years बैक व्हेन आई वाज वंस द स्टूडेंट ऑफ सच अ बूट कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द DSC. तो इस बुक कैंप ने मुझे बहुत हेल्प किया था और मैं भी सीख ही रहा हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने सीख लिया है वो मैं आपको सिखा सकूँ. तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल टुमारो. ओके, सो ये अनस था. अनस भी मेरा बैचमेट है, मेरे ही साथ पढ़ता है, सीनियर ईयर स्टूडेंट. और ही इज़ वर्किंग इन अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस देन मी. और उसका भी बैकएंड के साथ लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है. तो hopefully he can go on and explain you guys the concept of APIs tomorrow and code a basic API with you guys. तो I think आज का जो मीटिंग का एजेंडा था वो पूरा हो गया. Thank you so much for all the people who attended. It was a nice experience with you guys. Any other questions you guys want to ask? Okay. Okay, thank you everyone. यही मैं एक फॉर्म चला दिया जाएगा for your feedbacks. And hopefully we will look at your feedbacks and we will try to improve. Amanullah, if you have a question, you can go ahead. ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आप Node.js वगैरह सब एक्सप्लेन कर रहे थे सर, तो आपने कहा था कि Node.js हम यूज़ करते हैं बैकएंड के लिए और जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, राइट? नहीं, देखो. The thing that we have to understand is Node.js क्या है. Node में JS स्टैंड करता है जावास्क्रिप्ट के लिए, सही है. जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी. अब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी फ्रेमवर्क्स बनते हैं. जावास्क्रिप्ट में Node.js भी है, जावास्क्रिप्ट में React.js भी आता है, Vue.js भी आता है, Angular.js भी आता है, सही है. तो अब Node.js एक फ्रेमवर्क बना है विच इज बिल्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट, जो यूज करता है जावास्क्रिप्ट को एज इट्स लैंग्वेज. एंड Node.js इज यूज्ड फॉर बैकएंड. React.js एक और फ्रेमवर्क बना है विच इज बिल्ट अपॉन ऑन npm एंड ऑन जावास्क्रिप्ट, बट इट इज यूज फॉर फ्रंट एंड, सही है. तो लैंग्वेजेस दोनों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दोनों जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रही हैं, पर इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इज डिफरेंट. तुम वहाँ पर React.js इस्तेमाल कर रहे हो एज अ फ्रेमवर्क और यहाँ पर Node.js एज अ फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है. ओके, मैं समझ गया. सही है. ठीक है, मैं समझ गया. ओके, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी. और कल का सेशन भी होपफुली 8:30 to 9:45 इसी टाइम होगा. और कल के सेशन में लैपटॉप्स रेडी रखना, कंप्यूटर्स रेडी रखना, कोडिंग साथ साथ करते रहना. और नोड का एटलीस्ट जितना आज मैंने सेटअप करवाया है उतना सेटअप तैयार रखना, ताकि कल हैंड्स ऑन तुम लोग साथ में कोडिंग भी कर पाओ. तो इट विल बी गुड एक्सपीरियंस. थैंक यू एवरीवन.